والدین کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی کہ ہمارے بچے دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ہی ساتھ اسکول میں حاصل کریں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن اینڈ ماڈرن ایجوکیشن ایک ہی انسٹیٹیوٹ میں اویلیبل ہوں۔ اسی ویژن کے ساتھ ایکسیلنٹ ایجوکیشنسٹ مشتاق خان نے ایک انٹرنیشنل نیٹ ورک کے پروجیکٹ لارل ہوم اسکول انٹرنیشنل کی فرنچائز کا آغاز کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام مما کہتی ہیں کہ ڈول کبھی بھی بیمار نہیں ہوتی، بٹ مائی ٹیچر سیز لیٹس چیک اٹ۔ لورل ہوم اسکول میں ہم ہر بچے کو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لورل ہوم اسکول میں بہترین فیکلٹی اور ماڈرن ٹیکنکس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے بچے کے مستقبل کی عمارت مضبوط بنیادوں پر قائم ہو۔ لورل ہوم اسکول نرچرنگ دی لیڈرز آف ٹمارو۔ اب آپ کے شہر جھنگ میں مین ایس ایس پی روڈ اپوزٹ الشفا ہاسپٹل، سیول لائن جھنگ، موبائل 034869500055۔ اس میں وہ تمام تر کیا خوبیاں ہیں، یہ سب کچھ جاننے کے لیے آج ہم یہاں موجود ہیں لارل ہوم اسکول انٹرنیشنل کی سینئر فیکلٹی کے ساتھ۔ آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی، شکر ہے اللہ کا۔ سر آلریڈی آپ ایک بڑا اسکول چلا رہے تھے اور کافی عرصے سے آپ کامیاب ہیں اور یہ ترین ایجوکیشنسٹ ہیں آپ، لیکن پھر بھی آپ کو یہ لارل ہوم اسکول کی فرنچائز کیوں لینا پڑی؟ بہت شکریہ آصف بھائی۔ ایکچولی 8-9 سال ہو گئے ہیں مجھے ایگزیکٹو اسکول چلاتے ہوئے۔ الحمدللہ پیرنٹس آر مچ مور سیٹسفائڈ ود می، دے فیل دیٹ دیئر چلڈرن آر ان اے ویری سیف اینڈ سیکیور ایٹماسفیئر۔ لیکن بہت سی دفعہ جب بچے کلاس 5 میں آتے ہمارے پاس اور کوشچن کرتے جی کہ آپ کے پاس یہاں پہ حفظ قرآن ہے، تو ایک کوشچن میرے مائنڈ میں آتا ہے کہ جی کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہمارے ریلیجن کا حصہ بھی ہے، اور کیوں نہ کچھ ایسا کیا جائے۔ میں نے سوچا کہ جس میں ثواب بھی ہو اور جس میں لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہو، میری اپنی وش بھی پوری ہو۔ تو اس کے لیے میں نے ڈھیر سارے سسٹم جو ہیں ان کو سرچ آؤٹ کیا، ڈھیر ساری فرنچائزز کو وزٹ کیا، اور دین جب میں یہاں پہنچا لارل ہوم اسکول، ان کا میں نے سلیبس آبزرو کیا، اٹ واز امیزنگ، اٹ ریئلی اٹریکٹڈ می اے لاٹ۔ ان کا جو سسٹم ہے اس میں پلے گروپ سے لے کے کلاس 9 تک جو کچھ بھی ہے وہ باقی ہر قسم کے سسٹم سے بالکل ڈفرینٹ ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں کہ لینگویج نرسری کے جی، اس میں فونکس انگلش کی ہر سسٹم میں موجود ہے۔ ظاہر ہے اگر if you want to speak out English in a real way with the correct pronunciation, then you must have the knowledge of pronunciation۔ لیکن فقدان کچھ اور بھی تھے یہاں پہ۔ وہ کیا تھے کہ ہمارے اس سسٹم میں ان انگلش فونکس کے ساتھ ساتھ اردو کے فونکس بھی موجود ہیں، ہم وہ بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اٹ ریئلی اٹریکٹڈ می۔ پھر اس کے علاوہ کچھ ان کا نصاب جو تھا، آکسفورڈ بکس تو تھی ہی صحیح، آکسفورڈ کا سلیبس تو تھا ہی صحیح، ماڈرن ایجوکیشن تو تھی، اس کے ساتھ ایک خوبصورت ریلیجن جو تھا اس کا ایک کمبینیشن بھی تھا۔ جو ایک مربوط ایجوکیشن سسٹم میں ڈھونڈنا چاہ رہا تھا وہ مجھے اس میں ملا۔ اب جو کمبینیشن تھا اسلامی نصاب کا وہ کیا تھا؟ میں نے ان کی بکس دیکھی، جیسے کہ اللہ کون ہے، میری وضو کی کتاب، جس میں نے دیکھا کہ بچوں کو وضو کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، پکچرز بنائی گئی ہیں اور باقاعدہ نیچے لکھا گیا ہے جی کہ ٹیچرز نے یہ پریکٹیکل کر کے دکھانا ہے بچوں کو اور ان سے یہ پریکٹیکلی کروانا ہے۔ پھر ان کی اسلامک اسٹڈیز کی جو بکس تھی وہ ایک ریڈر تھا، ایک ایکٹیویٹی بک تھی، اور ایکٹیویٹی بک ایسی تھی کہ جس میں ٹیچر نے وہ پریکٹیکلی پرفارم کروانا بھی تھا اور کرنا بھی تھا، قیام و سجود اور یہ سارا طریقہ جو ہے وضو کا، اور اسی طرح جو کچھ بھی تھا یہ پریکٹیکلی کر کے ٹیچر نے دکھانا تھا۔ اٹ ریئلی اٹریکٹڈ می اے لاٹ۔ صرف یہی تک بات نہیں ہے، ناظرے میں آ جائیں آپ، مینی انسٹیٹیوٹس آر ٹیچنگ ناظرہ قرآن۔ دیکھیں پہلے میں صرف بزنس کر رہا تھا، اب میرا جو مقصد تھا وہ کچھ اور تھا کہ بچے کو ایک ایسا مکمل فریم ورک دیا جائے جس میں اس کی شخصیت نکھر کے جب سامنے آئے اور وہ لوگوں کے سامنے بولے تو اس کی باتوں میں
मॉडर्निज्म भी हो और दीन भी झलक रहा हो, उसकी आंखों में हया भी हो, उसकी आवाज में गरज और कड़क भी हो। तो ये सारा कुछ जो था ये मुझे यहाँ पे मिला। अब मैं आपसे बात कर रहा था कि नाज़िर कुरान नई जगह पे पढ़ाया जाता है, बहुत से इदारों में बड़ी अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा जो डिफरेंस है वो क्या है कि नाज़िर कुरान के साथ हम कुरान मजीद लफ्ज ब लफ्ज ट्रांसलेट कर रहे हैं और बामुहावरा ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सिस्टम मैंने पहले कहीं नहीं देखा। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूट्स। तो मैंने सोचा कि ये इतना सवाब वाला काम है। जगह जगह मैं वर्सेस लगे हुए देखता था अगर मैं बच्चों को कुरान मजीद तर्जुमा से पढ़ाना सिखाएं, तो मैंने कहा कि ये मैंने काम करना है। देन आई रियली सिलेक्टेड लॉरेल होम स्कूल एंड आई टुक द फ्रेंचाइज and just I have started over here in the city, in my own city, to serve the community of my city. ग्रेट सर, आई अप्रिशिएट यू। मैम, सर ने बहुत खूबसूरती से अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लॉरेल होम स्कूल इंटरनेशनल के ओवरऑल जो स्पेशलिस्टीज हैं उनके बारे में बताया। तो काइंडली आप ये बताइएगा कि आप ये ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड मॉडर्न एजुकेशन को एक साथ कैसे बच्चों तक डिलीवर कर रहे हैं। In the name of Allah, the most beneficial and the merciful. First of all, I thankful to Asif Iqbal Sahab to give this platform to show our system specialties. Now we discuss about difference between modern education and the traditional education. Traditional education sir जिनके mostly ऐसे education systems हैं जिनमें traditional education अभी भी continue है, उनको new technologies के बारे में idea नहीं है और ना ही उन्हें इस चीज़ के बारे में कि उनकी जो बच्चों को टीच कैसे किया जाता है, टीचिंग मेथड स्टाइल जो है वो उन्हें अच्छे तरीके से नहीं पता होता। सेकेंडली सर, जो हमारे सिस्टम मॉडर्न एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है और उसके साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड की जा रही है। मॉडर्न एजुकेशन में सर आप डिस्कस कर सकते हैं हम कंप्लीट ऑक्सफोर्ड सिलेबस होगा और ट्रेडिशनल एजुकेशन जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम है। सेकेंडली है हमारे पास इडियोमेटिक ट्रांसलेशन प्रोवाइड करते हैं जिसमें लफ्जी और बामुहावरा तर्जमा दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो सर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम दोनों चीजें, मॉडर्न एजुकेशन भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनको ट्रेडिशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें स्केड्यूल क्या है आपका, क्या कॉम्बिनेशन है, इस बारे में काइंडली बताइएगा। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेली प्लान लेसन्स हेड ऑफिस से आता है और जैसे टीचर्स ने गाइड करना होता है कि हमारा डेली प्लान लेसन हमने बच्चों को कैसे टीच करवाना है, उससे कैसे उनके अंदर एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना है और कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उसे ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें और अपने उसे डेली लाइफ में अप्लाई कर सकें। और हमारी डेली बेस पे एक्टिविटीज़ भी होती हैं ताकि बच्चे जो हैं इम्प्रूव कर सके अपनी एबिलिटीज़ को थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए, आर्ट्स के जरिए, क्राफ्ट्स के जरिए। और हमारा जो सिस्टम है वो सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम है। जो भी लर्नर्स की उनकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम का रिजल्ट है जैसे कि वो पोर्टल वेब पे मौजूद है। आपकी एजुकेशन की जो नुमायां खसूसियात हैं वो क्या क्या है? सर वही कि कंप्लीट ऑक्सफोर्ड सिलेबस होगा जो कि मॉडर्न एजुकेशन से बिलोंग करेगा। दूसरा इंटीग्रेटेड इस्लामिक क्यूरिकुलम है जो कि मुकम्मल इस्लामी निसाब है जो कि ट्रेडिशनल एजुकेशन से बिलोंग करेगा। अब मॉडर्न एजुकेशन कंप्लीट ऑक्सफोर्ड सिलेबस है और इंटीग्रेटेड इस्लामिक क्यूरिकुलम में दो चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर लिटरल है, अदबी चीज़ें। अदबी चीज़ें में जैसे कि आ जाता है कि प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखाया जाएगा और जो जैसे कि हम इस्लामी निसाब में जैसे चीज़ें होती हैं कि वुज़ू के बारे में, नमाज के बारे में, खुलफाए राशिदीन के बारे में और हज़रत उस्मान गनी हैं, हज़रत बीबी फातिमा, इनके ऊपर छोटी छोटी बुक्स राइट की हुई ताकि बच्चों को जहां वो मॉडर्न एजुकेशन सीख रहे हैं वहां पर उन्हें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सब कुछ गाइडलाइन उनके पास मौजूद हो कि वो एक अच्छा सिटीजन होने के साथ साथ गुड मुस्लिम भी बन सके। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन कौन सी आप अवेल कर रहे हैं स्टूडेंट को? सो ऑक्सफोर्ड सिलेबस में जैसे कि आ जाता है साइंसेस सब्जेक्ट्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये ऑक्सफोर्ड सिलेबस होता है और ऑनलाइन सिस्टम भी मौजूद है। जैसे कि आपको हमने बताया है कि सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम होता है कि जो भी हमारे पास लर्नर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ जो है वो वेब पोर्टल पे मौजूद होती हैं। मम्मा कहती हैं कि डॉल कभी भी बीमार नहीं होती, बट माय टीचर सेज लेट्स चेक इट।
लॉरल होम स्कूल में हम हर बच्चे को अपने अंदाज से देखते हैं। यही वजह है कि लॉरल होम स्कूल में बेहतरीन फैकल्टी और मॉडर्न टेक्निक्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है ताकि आपके बच्चे के मुस्तकबिल की इमारत मजबूत बुनियादों पर कायम हो। लॉरल होम स्कूल, नर्चरिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। अब आपके शहर जंग में मेन SSP रोड ऑपोजिट अल शिफा हॉस्पिटल, सिविल लाइन जंग। मोबाइल 034869500055। मैम से मुखातिब होते हैं। इन्होंने ओवरऑल सारा क्राइटेरिया तो बता दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब एक बहुत अहम चीज़ होती है जो कि आपका टीचिंग मेथड है, जो आपका डिलीवरी सिस्टम है। तो इसके एतबार से आप बताइएगा कि आपकी जो फैकल्टी है वो किस मेथड के तहत बच्चों को एजुकेट कर रही है। Firstly, I am very thankful to you for giving me a chance to provide the all information about my Laurel Home International School. बेसिकली सर हम ऐसा टीचिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं कि जिसके थ्रू जो है बच्चे इजीली अपना वर्क जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सके। सिर्फ जो है हम लर्निंग नहीं करवा रहे बल्कि एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म भी साथ में दे रहे हैं। तो थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स एंड आर्ट एंड क्राफ्टिंग मेथड के साथ जो है हम बच्चों को एक प्रॉपर जो है वो टीचिंग मेथड प्रोवाइड करने की फैसिलिटी जो है वो हम अपने कैंपस में दे रहे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी एजुकेशन के उसका जो करिकुलम है वो बड़ा मैटर करता है, तो आप इसके बारे में बताइएगा। सर हमारे पास बेसिकली जो ऑक्सफोर्ड सिलेबस के साथ प्रॉपर इंटीग्रेटेड इस्लामिक करिकुलम मौजूद है। अब करिकुलम जो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास लिटरल, हमारा लॉरल होम स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह बाकी स्कूल्स की निस्बत लिटरल एंड इडियोमेटिक ट्रांसलेशन के साथ जो है एक प्रॉपर करिकुलम पेश कर रहा है। लिटरल करिकुलम के अंदर हमारे पास डिफरेंट जो है वो बुक्स आ जाती हैं जिसमें हम डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, इस्लामिक पर्सनैलिटीज़, नेशनल पर्सनैलिटीज़ के बारे में बच्चों को गाइड करते हैं। और ये हमारा जो करिकुलम है ये हमारा प्ले ग्रुप से ऑनवर्ड जो है थ्रू जनरल नॉलेज एंड थ्रू डिफरेंट रीडर्स के जो है एंड थ्रू इस्लामिक बुक स्टार्ट हो जाता है। एंड टिल नेक्स्ट जो है हमारे पास लिटरल इडियोमेटिक ट्रांसलेशन आती है जिसमें हम जो है बाकायदा हमारे पास 4 क्लास से ये ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और उसमें हम लफ्जी तर्जमे के साथ साथ बामुहावरा तर्जमे में कुरान पाक की स्टडी भी करवाते हैं। और ये हमारे जंग में फर्स्ट कैंपस, फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि हमें लिटरल एंड इडियोमेटिक ट्रांसलेशन के साथ कुरान की स्टडी जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अब ये बताइएगा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसे हम गैर निसाबी एक्टिविटीज़ भी कहते हैं वो कौन कौन सी? सर गैर निसाबी सरगर्मियों में हम एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स, गाला, डिफरेंट लिटरल कंपटीशंस जिनमें हमारे पास स्पीचेस के थ्रू एंड डिफरेंट वेज में जो है बच्चों को मजीद इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो है हम अपने पास एनुअल फंक्शंस जो है वो करवा रहे हैं। जी मैम, मैं ये चाहूँगा कि लास्ट में आप ही हमें बताइएगा कि आपका एग्जामिनेशन सिस्टम किस नौइयत का है और किस प्रोसेस के तहत आप एग्जाम लेते हैं। जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो टोटली सेंट्रलाइज है। जैसे कि सर हमारे जो पेपर्स होते हैं वो हेड ऑफिस से आते हैं प्रिंट होके, हमें TCS के जरिए हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। हम यहाँ से बच्चों से पेपर कंडक्ट करते हैं और दोबारा हम हेड ऑफिस भेज देते हैं। वो वहाँ पर एक बाकायदा टीम होती है जो उसे चेक करती है और देन वो हमें पेपर्स ऑनलाइन सिस्टम के जरिए रिजल्ट जो होता है वो भेज देते हैं। जी, प्रोग्राम के लास्ट में हम लॉरल होम स्कूल के फ्रेंचाइज डायरेक्टर मुश्ताक खान साहब से मुखातिब होंगे। सर, आपके इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जान के बहुत खुशी हुई। यकीन करें कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं। मैं ये चाहूँगा कि झंग कम्युनिटी को आप क्या ऑफर करना चाहेंगे और फर्दर आप किस तरह से पेरेंट्स के साथ कोऑपरेट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस सिस्टम ने मुझे अट्रैक्ट किया, इसके सिलेबस ने मुझे अट्रैक्ट किया। जो मेरी एक विश थी, मेरी जो एक थर्स्ट थी कि मैं कुछ ऐसा टीच करूं बच्चों को कि बच्चों के लिए वो एक डिफरेंट लर्निंग हो। इकबाल का शेर है, एक आपने वो पढ़ा होगा कि गर शोब हो मुयस्सर तो शबानी से कलीमी 2 कदम है। जी बिल्कुल ऐसी बात है। और अगर आप इसको समझें, इस पे गौर करें तो वाकई ये एक पैगम्बराना पेशा है। तो एज अ टीचर मेरा जो फर्ज है, जो मेरी ड्यूटी है, रियल सेंस में मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया।
बिल्कुल सर, डॉक्टर इलाम इकबाल ये भी कहते हैं ना कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो सितारों पे डालते हैं कमन। जी जी इंशाल्लाह जी। तो सर अब आप हमारी कम्युनिटी को क्या ऑफर देंगे? इतना अपनी इस कम्युनिटी के लिए जो मैं सिस्टम लाया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम पहले कहीं पे भी नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो निसाब है, ये वाला जो सिलेबस है, ये यहाँ पे किसी के पास मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। आपका बच्चा कुरान मजीद पढ़ना सीख जाता है तर्जुमे के साथ। तो देखें आपको और क्या चाहिए, मॉडर्निज्म भी है, रिलीजन भी है। कुरान भी पढ़ना सीख जाए, ओ लेवल भी कर जाए, लेवल्स भी करे, और उसके साथ साथ एक मुकम्मल मुस्लिम भी बन जाए, अच्छे मुस्लिम। दीन और दुनिया दोनों चीजें जो है ये साथ साथ चलें। जी सर, ये एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा। ये देखें कि अगर आप देखें जी आजकल मोस्टली ऐसा भी होता है जी, शायद रेयर केसेस हो कि बाप की डेड बॉडी पड़ी होती है और बेटे को जनाजा नहीं आ रहा होता। ऐसी बात, तो वो बाप कितना बदबख्त है और उसकी किस्मत कैसी है कि उसका अपना बेटा भी उसका जनाजा नहीं पढ़ पा रहा। जी बिल्कुल। तो क्या फायदा आपको ऐसी एजुकेशन देने का कि आपका बच्चा आपका जनाजा भी ना पढ़ सके। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो सब कुछ बच्चों को देंगे जो बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल होगा, उसके पेरेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। और जो मैं झांकी कम्युनिटी के लिए कर सकता हूँ वो मैं ये करूँगा, वो मतलब एक ऑफर है हमारी तरफ से जी जी कि फर्स्ट 50 एडमिशन जो है उसमें हम 25% फी पे ऑफ दे रहे हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज एग्जामिनेशन सिस्टम है। हेड ऑफिस में सारे पेपर्स बनाने भी हैं, भेजने भी हैं, और पेपर भी चेक करने, ऑनलाइन रिजल्ट देने हैं। तो उसकी जो फी है वो तो हेड ऑफिस की है, लेकिन जो फी है 3000 रुपये फी है, 3000 फी पे 25% ऑफ हमने दिया फर्स्ट 50 एडमिशन पे। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने, हमने जो ये ब्रोशर्स डिलीवर किए न्यूज़पेपर्स में रखवाए, तो जिस बंदे के हाथ में ब्रोशर लगा है ना, यकीन जाने वो ढूंढता हुआ आया है और उसने कहा जी कि मुझे ये चीज चाहिए जी। आप मेरा बच्चा जो है ना जी, मेरे एक बंदा आया, उसने कहा जी आई हैव 4 kids, just enroll all the students over here in your institute. I was amazed. गुड सर, Really it was amazing for me. जबरदस्त। It really you may say shocked me that people are searching such kind of things. जी बिल्कुल, अमूमन ये देखने में भी आता है कि हमारे यहाँ आजकल के जो इदारे हैं जो मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने ओवरऑल यूरोपियन कल्चर को अडॉप्ट कर रखा है और दीनी एतबार से हमारे बच्चे बिल्कुल जीरो हैं। ये झंग का एक वाहिद इदारा है लॉरल होम स्कूल इंटरनेशनल, जो दुनिया और आखिरत दोनों की तालीम दे रहा है और ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान आसिफ इकबाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मम्मा कहती हैं कि डॉल कभी भी बीमार नहीं होती, बट माय टीचर सेज लेट्स चेक इट। लॉरल होम स्कूल में हम हर बच्चे को अपने अंदाज से देखते हैं। यही वजह है कि लॉरल होम स्कूल में बेहतरीन फैकल्टी और मॉडर्न टेक्निक्स पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, ताकि आपके बच्चे के मुस्तकबिल की इमारत मजबूत बुनियादों पर कायम हो। लॉरल होम स्कूल, नर्चरिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। अब आपके शहर झांग में मेन SSP रोड ऑपोजिट अल शिफा हॉस्पिटल, सिविल लाइन झांग। मोबाइल 034869500055।